खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na, 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 Evening, everyone. Hello. We welcome you all for a session, and the session is for youngsters. We are very lucky. So, today the topic will be rejection. So, rejection can be with family, girlfriends, boyfriends, relations, maybe money, color, any type of rejections. We everybody is facing rejections. छोटे से बड़ा सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सफर कर ही रहे हैं. But how to cope up with that is something we are going to learn in this session. We're going to experience in this session. So we are very lucky that we are having this session. Uh, so there are few rules which we all have to follow. Rule number one, we have to keep ourselves muted. Please, किसी को कुछ भी बोलना है, anybody wants to share anything, please chat में हमें message करें. We will unmute you accordingly. But for your good experience and for others' blissful experience, it's our responsibility. We have to keep ourselves muted. जब भी host को किसी को unmute करना होगा, we'll do it by ourselves. Because it's an open session, so we'll keep on unmuting you one by one. And anybody wants to share, please chat me message kare and we will do accordingly. Thank you for that. Second is, elders are not supposed to be there. No mama, no papa, no big bhai, no big behan, nothing. सबको हटा दो या खुद हट जाओ. And this is another rule कि ये एक youngster session है. So not every elders are not gonna be there. और प्लीज कोई भी अगर इस ग्रुप में एल्डर है जो 15 to 30 को क्रॉस कर रहा है या बिलो है,
please leave the group by yourselves. We don't want to remove anybody from the group. So this is a humble request from us. Third point will be camera. We all have to keep our cameras on because we have to keep an eye on you all. So सब अपना अपना camera on रखें. So today's session, as we all know, our very beautiful spiritual life coach Monica Singhal will be there to help us, and she has been conducting sessions from last 4.5 years, and across India, across world. So we are very blessed that on such a platform we are able to hear her, we are able to be with her. And oh my God, and you know, people, we are so more lucky that we have double bonanza today. One more mentor will be there who is gonna be our guardian today. So I feel so blessed कि अभी भी मैं 30 की नहीं हुई and I can be a part of this session. So thank God for that. And so our guest is a clinical psychologist, a speaker, writer, therapist, and a corporate trainer. She has treated more than 1100 patients and is a founder of Disha. Disha is a mental health and wellness center in Indore, and it is running beautifully. She is a counselor at IIM. We all are aware of it, IIM Indore, and chief editor of Soul Space magazine. She's already featured in 100 newspapers and radio sessions from in just in last 3 years. She has attained a beautiful level. Wow. And we are so lucky we can hear her. Wow. So we are going to introduce, and she's a two-time TEDx speaker. So we are very, very lucky that we have her with us, and everybody with full heart, we welcome Prachi Agarwal. Thank you, Prachi, for being with us, and thank you to all you souls for being a part of this. We all are blissful. So everybody have a best time, and Monica Singhal will be there to guide you, to help you, and she's the host of the meeting. So everybody, good luck, good wishes. Take care. Thank you, Astha. Thank you. So nice of you. Am I audible? Please check. And everybody, please keep yourself muted. Everybody, keep yourself muted. Thank you. So I hope आस्था ने वैसे बहुत 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 ज़्यादा तारीफें कर दी हैं, and I hope and I pray to God कि आप लोगों को अगर उसका 1% भी मिलता है कुछ, because I believe that I am not doing anything. It is happening through the universe. It is happening just because of all of you. So first of all, I thank all the pure souls on this screen today, on this session today, क्योंकि अगर भगवान, अगर जिसको भी हम सुपर पावर को मानते हैं, अगर कोई बसता है तो वो हम सबके अंदर. सो स्माइल, सबसे पहले जिनको नहीं पता, जो जानते हैं, आई एम ग्लैड उनको पता है, बट स्माइल जो नाम है और आप लोगों का लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी मतलब जिंदगी इज जस्ट एंडलेस, इनफाइनाइट. और ये स्माइल की ही एक ट्रिब्यूट है, लव यू जिंदगी. स्माइल में हम थोड़े से इससे बड़े एज ग्रुप को केटर करते हैं, बट स्माइल मीन्स सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड. सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड. एंड फॉर स्माइल हम हमेशा एक स्माइल का एंथम गाते हैं. सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, दो आप लोग म्यूटेड हैं, पर listen to it and then try to feel it and then try to sing in yourself. So first caller on Prachi. Is Prachi on the screen? I cannot see her. Astha, is she there? Yes. Yeah. Yes, Bhabhi. Prachi, I welcome you to this. I'm so glad you are there and you could make out or time nikal paye aap. So welcome, dear, to this session of spreading love to all and knowing ourselves better than we know. So, and thank you, dear. मतलब तुमने इतना time निकाला. It's very nice of you. So, would you like to introduce, you say something to children? उसके बाद हम एक बारी smile का एक song गा लें जो बच्चों के लिए है, जो this is for everybody, every human being. Yes. I would just say that it's a pleasure being here with everybody, and I'm sure it's going to be an amazing hour spent together.
जहाँ पे हम बोले we will share a lot of experiences with each other, which will indeed lead to learning. So I look forward to a beautiful hour on this beautiful Saturday afternoon. And yes, I would just also request everybody to switch on their cameras so that the interaction is more fulfilling. That's about it. Thank you. Yeah, that is very important. See, जैसे प्राची ने अभी रिक्वेस्ट करी, it is so nice of her. Because प्राची already इतना कुछ कर रही है, so मुझे पूछने में भी लग रहा था whether she'll be able to take out time or not, but she was so happy and she said yes, I would love to interact with all of them. So this is very nice of her. और अगर आप लोगों ने अपनी ही शक्ल नहीं दिखाई तो कुछ आधा रह जाएगा. So stay there. Switch on your cameras because बातों से ज़्यादा a different kind of vibrations. We are going to exchange energies. We are going to connect through our subconscious. The experience should be beautiful, but only if we can look at you, if we can see you, and everybody is most welcome to ask any kind of question. So पहले हम स्माइल का एक छोटा सा song as an introduction about smile. How did it come? हमें भी नहीं पता कैसे चालू हुआ. It is just holding hands with each other. और क्योंकि we believe that in this universe God has created everybody unique, so everybody is just trying to exchange. जैसे पुराने समय में barter system होता था, एक चीज मेरे पास है और दूसरे के पास दूसरी चीज है, so we exchange and हम दोनों ही थोड़ा फुलफिल हो जाते हैं. ऐसे ही हम लोगों की ये स्माइल का ग्रुप चालू हुआ है, जिसको जो आता है वो शेयर करता है. सो हमारा इसका मोटो यही है कि कोई मन से भी अपंग ना हो और कोई तन से भी अपंग ना हो. सो द सॉन्ग इज लाइक, ना कोई तन से ना कोई मन से, ना कोई तन मन से अपंग हो, स्माइल में आओ, लाइट जगाओ और नया जन्म ले लो. So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile, smile, see magic in life every second. Your life is a magic every second. Every second. Your life is magic every second. So I welcome you all to this platform of Love You जिंदगी. आज का सेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आज के बाद हम अपनी जिंदगी के हर पल को, whether it is acceptance, whether it is success, whether it is rejection, as the name of the topic today we have selected, rejection. Rejection किसको कहते हैं और क्या ये सभी के जीवन में आती है या ये नहीं आती है, ये आती है तो क्या देती है, क्या करें. आज का हमारा एम यही है कि आज हम इस 40 मिनट्स में इस रिजेक्शन वर्ड का जो मीनिंग हमें पता है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए कि जहां हम रिजेक्शन को अभी तक समझते थे कि दिस इज द वन हैम्परिंग माय लाइफ और टेकिंग अवे सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स अवे फ्रॉम माय लाइफ, we start welcoming it and we are so strong enough to handle it so beautiful. क्योंकि अक्सर लाइफ में किसी भी हम सिचुएशन में हो, डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड कैसा है उस सिचुएशन के प्रति. हाउ आर वी बिहेविंग, व्हाट इज आवर एटीट्यूड. सो वही एक एटीट्यूड हमारा जब वीक होता है या हम थोड़ा फियरफुल होते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में मोस्टली रिएक्ट करते हैं. एंड दैट रिएक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ आवर रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो. बट अगर हम थोड़े भी स्टेबल होते हैं एंड इफ वी आर इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सो दैट वेरी मोमेंट वी कैन क्रिएट समथिंग. रिएक्ट एंड क्रिएट, यू नो, दीज, इन दोनों की स्पेलिंग्स बहुत 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 क्लोजली, अगर हम अल्फाबेट्स देखें तो यूज हुए, बट एक जगह हम रिएक्ट करते हैं और एक जगह हम क्रिएट करते हैं. सो आई होप कि आज का जो सेशन है वो हमें रिएक्ट वाली स्टेज को, इट टेक्स अवे फ्रॉम अस
एंड क्रिएट वाला जो फेज है वो हमारा चालू हो जाए. I would request जिसका भी speaker unmute है, please mute करिए. You will get full chance to talk and interact, but disturbance नहीं होनी चाहिए because this is a very very important session. So please take care कि आपकी वजह से कहीं पर भी कुछ भी disturbance ना. So I would yes, Prachi, can we have you on the screen, please? Definitely. Thank you. Yes. I think as Masi said that rejection is a very very important experience of life. क्योंकि I think right from school time, right from play dates to being picked up last in a team or not invited at a birthday party or being dropped off from a group of old friends or being teased or bullied in class, or as we grow up, sometimes when you ask somebody out for a date and being rejected for that, being refused for a job or internship or school or college or class. I think rejection is something कभी ना कभी हमारी लाइफ में आता ही है. And before I talk about rejection, I would actually like to understand and know from all the participants here ki what does the experience of rejection bring for you, or what have you seen that the rejection experience brings for people usually. I would appreciate if you can talk about yourself, but even if you are not wanting to talk about yourself, that's absolutely okay. So, what does the experience of rejection bring is something I would like people to share. And then, you know, and of course, if we have to talk about ki what does it bring in general, yes, there are a lot of things. Rejection के basic तीन चार types होते हैं, primary तीन. पहला होता है romantic rejection, I think, which is something that we're all very familiar with, either that we have seen it around us या फिर हमने पिक्चरों में देखा है या फिर हमने अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा होते हुए देखा है. तो this happens. फिर दूसरा होता है rejection in your workplace और school, कि आप कुछ चाहते हो, कोई accomplishment चाहते हो या आपने कुछ अप्लाई किया होता है किसी चीज़ के लिए और आपको वो ना मिले. और तीसरा होता है सोशल रिजेक्शन, कि आप किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड somehow for some reason you're not really welcomed in that place as you expected to be. अब ये एक्सपीरियंस क्या लाता है हमारे लिए? ये एक्सपीरियंस कई तरीके की चीज़ें क्रिएट करता है. एज पर साइकोलॉजी कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी एंड देन अगेन we can open the forum for discussion. First is of course rejection काफ़ी सारा emotional pain लेके आता है. मतलब हम कितना भी उस चीज़ को rejection. धनंजय प्लीज शेयर अनम्यूट कराइए जिसने भी म्यूट कराइए जिसने भी अनम्यूट करनी है गलती से. Thank you. Rejection काफ़ी सारा emotional pain लेके आता है. वो क्यों? क्योंकि ये एक evolutionary pain है. Scientists have found out कि जब हमारी बॉडी में कोई फिजिकल पेन होता है तब जो ब्रेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं वही ब्रेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जब हम रिजेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं. You'll be super surprised to know this, but this is true. और ऐसा क्यों होता है? Because जब when we had not evolved so much and when we used to live in tribes years and years and years ago, तब हम जब ट्राइब्स में रहते थे और अगर किसी ट्राइब ने किसी व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया, so it would mean that that person will be killed by other tribes. So that is why we had a lot of fear of being rejected. But what our body and our evolutionary, the evolutional development in our body has not learned yet is that अब वो time नहीं रहा. अब we are not dependent upon a tribe to be able to survive. तो हमारे ancestral brain centers वैसे ही respond करते हैं, which is pain. फिर rejection. Now this one is really, really important for us to understand.
रिजेक्शन रिजेक्ट्स आवर एबिलिटी टू रीजन. जब रिजेक्शन होता है ना, तो हमारे जो ब्रेन के लॉजिक सेंटर्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं. जैसे जस्ट इमेजिन आप कोई गाड़ी में जा रहे हो और आप गाड़ी आपकी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, और आप एक पेड़ से अचानक टकरा जाते हो विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट. तो ऐसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऐसे इंजन में से धुआं निकलने लगता है एंड ऑल दैट. सो इंजन स्टॉप्स वर्किंग. इट्स जस्ट लाइक दैट व्हेन रिजेक्शन हैपेंस टू अस. प्राची, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसके लिए ये जो तुमने पॉइंट बोला ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट हमारी एक तरीके से अगर हम कहें तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, our logic, our reasoning. So for that I would like to share one small story कि एक बारी एक donkey होता है, and you know what happens is कि this donkey he is lazing around और अचानक से इसके मालिक ने इसको थोड़ा ग्रास वगैरह खाने के लिए छोड़ा है, बट वो किसी के फार्म में घुस जाता है और उसके फार्म में इतनी अच्छी अभी मतलब बिल्कुल पूरी की पूरी खेती हुई हुई है, पूरा ग्रीन है फार्म, एंड ही इज अबाउट टू कट इट द नेक्स्ट डे, और वो सारा जो डोंकी है वो सारा खराब कर देता है, उसकी खेती, उसकी कल्टीवेशन सारी स्पॉइल कर देता है. और जब वो ओनर आता है एंड ही सीज दैट डोंकी, ही गेट्स मैड ओनली, मतलब उसको कुछ सूझता नहीं, बिकॉज वो 6 महीने से अपनी खेती कर रहा है, उसको उगाने की कोशिश कर रहा है, एंड द लास्ट वेरी मोमेंट जिस दिन उसको पता है कि अकल में बेचूंगा पैसे मिल जाएंगे, और आज वो डोंकी उसको स्पॉइल कर देता है, तो उसको इतना गुस्सा आता है वो उसको डोंकी को शूट कर देता है देयर एंड देयर. और जब वो शूट करता है तो वो जो डोंकी का मालिक है वो अचानक से आता है, और उसको उसका सारा काम ही जो है वो उस डोंकी की वजह से चलता होता है, सारे जो उसकी उसकी अर्निंग है वो उस डोंकी के माध्यम से होती है. उसको इतना गुस्सा आता है कि वो डोंकी को, वो जिसने डोंकी को शूट करा है, वो जो फार्म का ओनर है, वो उसको शूट कर देता है. जब उसको शूट करता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को इतना गुस्सा आता है कि वो उस फैमिली मेंबर्स जो उसके बेटे हैं वो जाकर अब इस डोंकी के ओनर को शूट कर देते हैं. डोंकी के ओनर को जब शूट करते हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स को इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि हम इस पूरी की पूरी इसकी फैमिली को जला देंगे, बिकॉज अब जो नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन जो है आप गुस्सा उसी पे निकाल सकते हो. फाइनली वो लोग उसको उनको जला देते हैं पूरी फैमिली को, और लेकिन जलाते हैं तो उसमें एक आधा जना बच के निकल जाता है, एंड दे आर इनटू सो मच फुल ऑफ रिजेंटमेंट कि वो सोचते हैं कि अब हम इनकी फैमिली को जला देंगे. सडनली एक थॉट उसके अंदर आता है कि ये एक दिन के अंदर अंदर हुआ क्या है, यू नो, एनीबडी इज किलिंग एनीबडी टू टेक रिवेंज. एंड सडनली ही मीट्स सम स्पिरिचुअल अवेकन्ड पर्सन, और मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया अचानक से. yesterday we all were happy, we all were fine, and you know we all were looking towards that money which was supposed to come from our farm, और आज हर जगह हमारे यहाँ आसपास हम मरते जा रहे हैं. So what is this? So तब वो बोलते हैं कि ये गधे के छोड़ने से नहीं हुई. The donkey was not the reason. The reason was कि वो जो situation आई उस टाइम पे आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को आप होल्ड नहीं कर पाए, एंड देन अ चेन ऑफ रिएक्शंस, यू नो, रिएक्शन रिएक्शन एंड रिएक्शन. तो बोलते हैं ना कि लाइफ में यू नो हम पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, एजुकेट आवरसेल्व्स, वी टेक डिफरेंट चैलेंजेस इन लाइफ. जो भी जिस एज में है वो कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करता है. इज इट ट्रू प्राची? सब लोग सेटलिंग के लिए ही करते हैं. Did we all settle now? Everybody tries to find a state of balance for themselves. Balance, yeah. Certainty कह लो, balance कह लो, something like that. Yes. तो सब कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक अच्छा घर सेट करते हैं, एक अच्छी जॉब सेट करते हैं, एक अच्छी अर्निंग सोर्स सेट करते हैं, लाइफ पार्टनर सेट करते हैं, मतलब आप हर चीज सेट ही करने की तरफ ध्यान होता है. लेकिन तब भी हर चीज सेट होते 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 भी आप कहीं ना कहीं रिजेक्शंस भी देखते हो, और आप डिफ्यूज होते रहते हो बीच बीच में, क्योंकि एक जो सबसे जरूरी चीज सेट करनी होती है आपको, विच इज योर माइंड सेट. माइंड को हमने सेट करना होता है, उसके अलावा हम लाइफ में सब कुछ सेट करते रहते हैं, एंड देन वी कीप ऑन ब्लेमिंग थिंग्स, सिचुएशन एंड पीपल अराउंड, रादर देन नोइंग कि ये मेरा माइंड थोड़ा सा अनसेटल था, जैसे कि उस ओनर ऑफ दैट फार्म, देन द ओनर ऑफ द डोंकी, देन द पीपल बिलोंगिंग टू हिज फैमिली, पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पर्सन्स फैमिली, क्योंकि माइंड सेट नहीं था सबका. सब कुछ लाइफ को सेटल करने के चक्कर में अगर एक माइंड को सेट कर लिया जाए
So what do you feel then? Can we convert our this rejection into something else? Absolutely, absolutely. And uh, before we move on to how we can transform the current state of rejection to something else, I would just like to, जैसे आपने बोला कि हम अभी बात कर रहे थे कि रिजेक्शन क्या क्या लाता है, तो as you rightly pointed out, रिजेक्शन कई बार काफी सारा एंगर और अग्रेशन भी लेके आता है, जो हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, लाइक वी इनिशियली स्पोक अबाउट रिएक्शन एंड क्रिएशन. और लोगों ने चैट पे भी लिखा है, विच आई राइटली अग्री टू, कि इट डैमेजेस आवर सेल्फ एस्टीम, it kicks it, it keeps hitting it and we keep beating ourselves up about it. And last but not the least, it creates a threat to our need to belong. हम सब एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और जब वो नहीं हो पाता है तो हमारी वो नीड जो हमें ऐसे थ्रेटन करती है कि व्हाट इफ आई विल नॉट be belonging anywhere, what if I will be ostracized from the community, what if I will be alone all the time. So that fear of being alone crops in. Now these are certain things that I have found out through psychology, but I would like people to share their experiences before we move forward. Like Nancy said, that this is more like an interactive session, so I would like people to share a little. And I am reading what you're writing on the chat in terms of how it leads to lower self-efficacy and how it creates hurt and a sense of worthlessness. I would like whoever's handling the meeting, Masi, to unmute some people. Yes. And we can. जिनका क्वेश्चन आए हैं धनंजय और आस्था, आप में से कोई? we can unmute one by one. Yes. Random Yes. Love people. to interact with them and definitely. Yes, people are sharing. Can you please unmute somebody random? आप किसी को नेम कर दो आस्था, या फिर इसका क्वेश्चन आया हो, जैसे कोई सजेशन आया हो, you can ask that. Do that. Anybody is most welcome. Let us not waste time and be a little quick because we are already. Anush, you unmute yourself and share. Bhabhi, we can continue. I feel जैसे अभी प्राची ने बोला है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन हमें क्या क्या चीजें, हालांकि चैट में सब लोग लिख रहे हैं वन लाइनर, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि रिजेक्शन की वजह से हम लाइफ जो इतनी इम्पोर्टेंट है उसमें हम क्या क्या चीजें बियर करते हैं, क्योंकि एज प्राची मेंशन कि एक अजीब तरीके का फियर होता है ऑफ लोनलीनेस और मे बी ऑफ नॉट अचीविंग व्हाट वी हैव प्लान्ड और डिसाइडेड फॉर अ लाइफ, एज एन जिनको हम गोल्स भी बोल सकते हैं या हम ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, और व्हाट वी एस्पायर फ्रॉम लाइफ वो भी बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि माइंड सेट पे वर्क करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज वी शुड नेवर लेट आवर फियर्स डिसाइड आवर फेट. मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे में हमारे फियर्स हमारा फेट डिसाइड कर देते हैं. और जिसका अभी अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूं, व्हिच आई डोंट वांट टू इवन मेंशन एंड अगेन, बट सुशांत राजपूत was loved by so many people, who was looked upon by so many youngsters as a live model, कि जो बिल्कुल जीरो से एक हीरो बना था, and his fear decided his fate. His fear of being left out, his fear of being, maybe he won't be able to get that fame again because he was being boycotted from a particular group. Or there are many things. Let's not make any particular judgment about anybody, क्योंकि once a person is gone तो media उसके बाद बहुत कुछ बोलता है. मेन बात ये समझने की है कि when we are born we are loved by people,
The day we are born, everybody loves us. The day we are gone, then also everybody loves us. कभी भी आप किसी की बुराई नहीं सुनोगे when anybody passes away. और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब भी आप किसी की बुराई नहीं, उस बच्चे की बुराई नहीं सुनोगे. Everybody loves that moment. Both the moments are being loved. और ये moments अनप्रिडिक्टेबल है, कोई इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई जान नहीं सकता कब आना है और कब जाना है. दीज टू मोमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये दोनों अनडिसाइडेड हैं, लेकिन बाकी का जो बीच में है ना, उस पे खुश रहने की सारी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी है. जब तक हम उस चीज को नहीं हैंडल करना सीखते तब तक वी विल फेस डिफरेंट चैलेंजेस, व्हिच इज फाइन. चैलेंजेस, reactions, rejections, these all are, ये भी एक तरीके का सक्सेस और फेलियर से कनेक्ट कर सकते हैं. प्राची, हम इनको सक्सेस एंड फेलियर से भी कनेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. आई थिंक अभी किसी ने ग्रुप पे लिखा था that it also makes us feel helpless, and I think that's again something that is very common with rejection, feeling of being rejected or having experienced some kind of a failure. क्योंकि हम ये मान लेते हैं उस टाइम कि ये मेरी परमानेंट रियलिटी है, which is absolutely not true. It's just about that one particular test or one particular incident of your life. And that's what. So हम जैसे हमने starting में बात किया that rejection rejects our ability to think clearly, to use logic. All right. So now I want to talk to everybody about some ways in which we can fight this feeling. So I am unmuting Akshat. Okay. Akshat, please pick up. Akshat. जो प्राची ने अभी एक बात बोली, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी. जो ये बोला कि वो ये मानते हैं कि दिस इज अ परमानेंट स्टेट. दिस इज द ट्रूथ, प्राची. उसके बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि आगे दिखता ही नहीं है कि आफ्टर दैट नाइट अ डे हैज टू कम, which is inevitable. This is the law of nature, because this thing happened recently, Prachi, with me. I happened to meet a person जिसने approach किया, that a very young girl, and a person who was a top scholar throughout her life, and she achieved all the credits. Like, she wanted to join Google, she could do that. She had best of the house and best. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो इतनी डिप्रेशन में चली गई, and then she was so full of fear. And उसको, मैं जब भी उससे प्रेजेंट की बात करूं, she was always talking about future, कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा. And then I just said one line to her, and will you believe that one line, after that one line, her perception, her thought about life totally transformed. I asked her, okay, fine, I cannot share her name because it is very personal, but I just asked her, okay, fine, तुम जो भी future के लिए fearful हो रही हो, I am with you and I accept the fact that ये सारे challenges आ सकते हैं. But just थोड़ा सा बचपन से लेकर आज तक, I mean, she was, I think, 27 years old. So I asked her कि ये जो 27 years की journey तुमने जी है, उसको अगर थोड़ा सा दोबारा से रिवाइव करो, जैसे हम फोटो एल्बम देखते हैं, just go through your life once, and don't you think that you have survived your 100% on those worst days which you were thinking at that age? कि आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, जब आपने फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम दिए, जब आप फर्स्ट टाइम कोई डिफरेंट टाइप का कोर्स लेने की सोच रहे थे, या कोई कंपटीशन में, तब जो फियर ने आपको एकदम घेरा हुआ था. सो आप क्या उन सब फियर्स को सर्वाइव नहीं कर चुके, जीत नहीं चुके अभी तक? And then slowly, gradually, she was into a state of a little acceptance कि yes, बहुत challenges आए हैं. So मैंने कहा, जब वो नहीं stay करे, so how can this particular situation stay with you forever? But अगर आप इसको पकड़े रखोगे, तो obviously you are not leaving it. That situation wants to leave you, but you are not ready to leave it. So I would like to add something here. I'm sorry. No, definitely, you're most welcome, dear. When we say कि कई बार हम सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, that is true for more than the times that we think it would be true for. क्योंकि जब कभी रिजेक्शन होता है,
तो वो एक्सपीरियंस तो पेनफुल होता ही है, लेकिन उस बारे में बार बार सोच के हम इतना ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में इंडल्ज करते हैं कि वो, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड ऑन पर्पस, वो हमारी सोच को पैरालाइज कर देता है. Yes, beautiful. I'll give you an example for this. I'm sorry to interrupt. I'm sorry. आस्था, आपने recording on कर दी है? आस्था? Yes, Is Bhabhi, it- it is getting. Sorry, I'm Yeah, sorry. yeah. I'm so sorry. Yeah. It's all. Yes, Prachi, you can continue, please. So, like I said कि जब हम अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में, नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो हमारी जो सोच है उसको पैरालाइज कर देता है. फॉर Right. एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने कोई ग्लास को हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग, एंड इफ आई से कि आई वांट यू टू होल्ड दिस ग्लास फॉर 2 minutes, राइट? तो मैं आपसे पूछूंगी इसका वेट कितना है, तो यू माइट से कि यू नो इट्स अबाउट 100-200 ml, सो अबाउट दैट मच. मैं आपको बोलूं कि इसी गिलास को आपको 15 मिनट तक पकड़ के रखना है, तो आपको उसका वेट कितना लगने लगेगा? ज्यादा लगने लगेगा. अब मैं आपको बोलूं कि इसी ग्लास को आपको अगले 3 घंटों तक ऐसे ही पकड़ के रखना है, तो क्या होगा? तो आपका जो हाथ है ना वो नम हो जाएगा. Yes. और ऐसा ही हमारी सोच के साथ होता है. जब हम एक ही चीज को बार बार सेल्फ क्रिटिकल वे में सोचते जाते हैं, तो हमारी सोच जो है पैरालाइज हो जाती है. नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? The first way to combat rejection is to argue with self criticism. ठीक है? अब जैसे अभी आज का ये सेशन यंगस्टर्स के लिए है, एंड आई थिंक यंगस्टर्स राइट्स में बहुत बिलीव करते हैं. तो अभी हम ये आर्ग्यूमेंट विद सेल्फ क्रिटिसिज्म कैसे शुरू करेंगे? हम, so this is something that I've learned from a group of youngsters here in Indore, जो कहते हैं कि some debating concept that they have, जिसको वो कहते हैं right to reply. ठीक है? एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू यूज दिस. राइट टू रिप्लाई का मतलब होता है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि जिससे मैं अग्री नहीं करती, अग्री नहीं करता, और इट्स नॉट 100% ट्रू, देन आई हैव अ राइट टू रिप्लाई टू इट इन अ डिफरेंट वे. ओके? अब वो डिफरेंट वे कहाँ से आएगी? फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो रिजेक्शन का एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं, आपके किसी दोस्त का है. ओके? अगर वो आपका नहीं, आपके किसी दोस्त का है, बेस्ट फ्रेंड का है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलोगे आफ्टर दैट एक्सपीरियंस? क्या आप उसको ये बोलोगे, इफ सपोज योर बेस्ट फ्रेंड गेट्स रिजेक्टेड आउट ऑफ यू नो अ कॉम्पिटिशन और अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, तो आप उसे क्या बोलोगे कि नहीं यार, तू तो डिजर्व ही नहीं करता था, यू आर नॉट केपेबल, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर तो यूजलेस, ये सब बोलोगे आपके बेस्ट फ्रेंड को? नहीं ना. आप उसे बोलोगे कि नहीं यार, इट्स ओके, यू नो यू, देयर आर बेटर थिंग्स फॉर यू, maybe there was something that could have, you know, there was something that did not match, maybe there's something better for you, you know, this is just one thing, but you're really good at this, you did not get selected in this club, but it's okay, you know, you really are good at this, I'm surprised how it didn't happen. So how do we argue with self criticism? Two things: right to reply, and what is the advice that your best friend will give you. Okay? We're having some questions on the chat which I will address in some time. Hope that's okay. Second technique होती है which is about reviving your self worth. ठीक है? अब ये कैसे करते हैं? सेल्फ वर्थ रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग कभी ना कभी, इनफैक्ट वंस इन अ वाइल, उसका प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए, मे बी वंस अ मंथ और समथिंग. वो टेक्निक ये है दैट मेक अ लिस्ट ऑफ योर 5 टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स और वैल्यूज दैट यू हैव. अगर कोई रिजेक्शन हुआ है तो ट्राई कि आप जो लिस्ट बना रहे हो वो उस रिजेक्शन में जो स्किल्स चाहिए होती है उससे रिलेटेड हो, तो उससे बाहर आने में हेल्प होगा. और अदरवाइज मेक अ लिस्ट ऑफ 5 such attributes or characteristics that you have, that you think are really useful and that you think are really important
in that domain particularly, and then rank 3 top characteristics of those 5 जो आपको लगता है कि ये 5 में से भी ये 3 बहुत ही अमेजिंग है या ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर I want you to write a little essay or probably a 2 paragraph or something about each of them, about you and that characteristic put together, how that's useful, how you have practiced it and all. अब ऐसा क्यों? आस्था जी कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? Saksham, Muted. please mute yourself. Okay. Saksham, yeah. Yeah. तो तीसरा जो पॉइंट which I was talking about is कि write an essay or 2 paragraphs about that characteristic. और वो क्यों? अब जैसे कोई आप किसी से पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, और the person tells you कि very nice, very nice, तो आप वापस से किसी और से पूछते हो, you don't believe them, right? Because you're not sure. You just feel that probably they were just being polite, they were just being nice to you. But then if I ask somebody that how am I looking today, and the person says no, are you looking really nice, especially your hair and what you're wearing, that color is really suiting you, and things like that. तो क्या होता है, तो हम बिलीव करने लगते हैं because that person explained the detail of why they believe that you're looking nice, why you believe in that good point about you, right? उसी तरह जब हम कई बार खुद को बोलते हैं ना that yeah I'm good, I'm good at this, I'm good at this, तो मन ऐसे मानता नहीं है, it's not easily convinced because it wants some proof. So, and the proofs are there, it's not that we are faking it, the proofs are there, we just have to take notice of them and probably pen it down, register it more with more emphasis. So if you do this exercise, अगर आपको लगता है कि यार मेरी ना self worth कभी कभी ना ऐसे low हो जाती है, I think this is a beautiful exercise that we can do with ourselves, for which we need nothing else but ourselves and a pen and a paper. That's it. Very, very nice, Prachi. So I think ये exercise सबको करनी चाहिए, and I think age is no bar for this. Every person requires this, क्योंकि rejection मुझे mainly ये बता के बड़ा मजा आता है youngsters को कि आप अपने elders को देख लो, 20 साल बड़े, 30 साल बड़े, 40 साल बड़े, 50 साल बड़े, या इवन 60 years बड़े, जिनके पास अब कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है लाइफ का कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना है या उन्हें कुछ अर्न करना है या फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन देम, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे हैव फुलफिल्ड देयर ड्यूटीज. अब वो एक एज में आ गए तब भी दे हैव देयर ओन कॉम्प्लिकेशंस. इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. सो आप अगर ये सोचते हो कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर टारगेट्स, द वेरी टारगेट जो अभी आपके सामने पड़े हैं उसकी वजह से, ऐसा नहीं है. हर लाइफ के, हर एज के, हर सिचुएशन के चैलेंजेस होते हैं, एंड उन चैलेंजेस को हम चैलेंज करेंगे. द सिचुएशंस व्हिच एवरीबॉडी. इसके लिए मैं ना एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी प्राची, आप भी देखना, एंड आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू सी इट प्लीज. धनंजय चेक कौन कौन अनम्यूट हो गया, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड आई वांट एवरीबॉडी टू सी दिस वीडियो केयरफुली. एंड आई थिंक बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट स्टिल ट्राई टू कनेक्ट कि हमारी रिजेक्शंस दे ईट आवर लाइव्स. हमारी लाइफ के वो पल, वो इम्पोर्टेंट टाइम which is irreplaceable. Anything in this life is replaceable, but not the moments of life. जो निकल गया टाइम वो कभी आएगा नहीं वापस. So we have to give importance to that time and just see how, if we, जैसे प्राची ने अभी गाइड किया है कि अगर हम एक अपना जर्नल बनाएं और small paper and a pen and write down these points and talk to ourselves. And I love this example of hers कि हम कैसे अपनी friend को motivate करते हैं ना. नहीं है कुछ problem नहीं है, you're looking very pretty, you will achieve it, it's nothing to be if you remember Three Idiots picture में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स थे ऐसे फ्रेंड्स के. अगर फ्रेंड फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, अगर फ्रेंड के आपसे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए तब और भी ज्यादा दुख होता है. रिमेम्बर प्राची, अगर सबको याद आ रहा हो, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आई ओपनर कि आप हमेशा अपने फ्रेंड के लिए वरीड रहते हैं, लेकिन अगर आपने इकट्ठे मेहनत करी और आपका फ्रेंड आपसे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा धक्का वाली बात होती है. So life में there are different situations, but see how we handle our rejections. So I'm sharing a video
So I would love everybody to be with me and see this. Can I please request everybody to switch on their cameras? Astha, is it visible? Not visible. It is not visible. No. उतर रहे थे न मैं लक न भाग न तीनों पे पैर पे आग के मेरे पैर उतर रहे थे न मैं लक न भाग न किस्मत में इन तीनों पे भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं मोड़ देते। मेरे भाग्य में किया था कि मैं व्हील चेयर पे आ जा, यू नो बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड पे मुझे सभी ने बोलते एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में जो नॉर्मल लोग होते हैं, तो एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक में थी। कैसे लोगों को लगता था कि रिमा ने अपने गोल को, अपने मिशन को अपने पैरों से क्लेम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लेम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हारेंगे और वो अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में कि नेगेटिविटी बहुत हो जाती है आपके प्रति। आप नेगेटिविटी से कभी परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है, नंबर कम आया या किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स में से किसी को कुछ जरूरत, अब वहां लड़ करके आप वो करोगे बस यूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को समझाओ और फिर वहां प्रॉमिस करो खुद से, किसी और उसको भी प्रॉमिस करने की जरूरत, खुद को मैं करके दिखाऊंगी। आई होप सबको ये वीडियो दिखी होगी, नजर आई होगी। सो प्राची, कैन आई कमेंट फ्रॉम यू ऑन दिस वीडियो? सबको वैसे थोड़ा सा मैं अरुणिमा सिन्हा का आई थिंक सबको पता भी होगा कि she was a volleyball player and she lost her leg in a little tiff while she was coming to participate in one of the nationals। और ट्रेन में उसका झगड़ा हुआ कुछ डिकॉइट से जो लूट करने के लिए आए थे, एंड she was thrown away out of the train, running train, and रात भर बहुत सारी ट्रेन्स उसके पैर पर से चलती गई। So many trains crossed her on her leg और there was nobody to save her। एंड जो वो एक्सप्लेन करती कि रात भर जो ट्रेन के ट्रैक पर चूहे होते हैं और जो इस तरह के, वो उसके पैर को कुतरते रहे। They were eating her leg and there was nobody at her rescue। मॉर्निंग में जब लोगों ने उसे देखा, उसे लेके गए उसका इलाज के लिए, और वो हॉस्पिटल वाज नॉट वेरी सफिशिएंट, बट स्टिल वहां उसका इलाज कराएगा। वहां पर उन लोगों को एनेस्थीसिया देने के लिए भी कोई ऐसी ही चीज नहीं थी। एंड शी सेड कि मैंने रात भर में इतना पेन बेयर कर लिया है कि आप बिना एनेस्थीसिया के अगर
मेरी, बिकॉज शी वाज टोल्ड कि ये टांग तो हमें प्रॉपर काटनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा एंड यू वोंट सर्वाइव. सो शी हरसेल्फ टुक द डिसीजन कि मेरी टांग काट दीजिए, और उसकी टांग एम्प्यूटेट करी गई. एंड जब उनके पास एनेस्थीसिया देने के लिए कुछ नहीं था, शी ऑप्टेड कि आप कोई बात नहीं, अब मैं इसको देखूंगी कि आप इसको कैसे काट रहे हैं, आई विल बियर दैट पेन एंड आई थिंक आई कैन मैनेज दैट पेन. और उसने वो बियर करा एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, जहां पर उसका पैर चल नहीं रहा, उसकी पूरी पीठ में फ्रैक्चर्स ही फ्रैक्चर्स हैं बैकबोन में, एंड शी गोज टू बचेंद्री पाल कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है. wherein she herself was sharing right now कि इस लेग के साथ, आर्टिफिशियल लेग के साथ चलने के लिए प्रैक्टिस करने में ही 4-4 साल लग जाते हैं लोगों को उसके यूज टू होने में. But she opted that she wants to climb Mount Everest. Why? Because life rejected her. Today the topic is rejection. Try to understand. ये तो मैं बहुत बड़ा एपिसोड आप लोगों को दिखा रही हूँ. हम लोग तो लाइफ में छोटी छोटी रिजेक्शंस को बेयर नहीं कर पाते, एंड हम अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा कम वैल्यू करते हैं. जो सबसे प्रेशियस चीज है, हम मानते हैं बढ़िया ब्रांडेड कपड़ों को प्रेशियस मानते हैं, बढ़िया गैजेट्स को प्रेशियस मानते हैं, अपनी डिग्रीज को प्रेशियस मानते हैं, अपने रिलेशंस को प्रेशियस मानते हैं. बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज है, जिसको पैसों से खरीदा ही नहीं जा सकता, वो अपनी लाइफ को सबसे सस्ता मानते हैं. कि कभी भी कुछ आया और 1 मिनट में कोई भी सोचता है बस इसको तो खत्म ही कर डालो, जैसे ये फ्री फंड की है, और एक्चुअली फ्री फंड की मिली हुई है. But you know, whenever we lose life and whenever we don't live life as it is supposed to live, उससे बड़ा खराब काम हम कर नहीं सकते हैं. We have to pay for it, which is the karmic theory. We have to pay for it in different lives. So देखिए कि अरुणिमा ने क्या बोला. She said कि मैंने पैरों से क्लाइम नहीं करा. माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद उसको सब लोगों ने बोला you're mad. बचेंद्री पाल said, I salute to your thought process, but it's not possible. Let me tell you, it's not possible. And what was her reply? She said, मैं आपसे हेल्प नहीं मांगने आई हूँ, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना है that I am climbing it. Can you be a part of it? Can you help me to just guide me? I don't want your response कि आप मुझे हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे. I am just asking, I am going to do this. आपकी राय नहीं चाहिए. That kind of, when you say, आप या तो रिजेक्शन को एम्ब्रेस कर सकते हैं या आप रिजेक्शन को एम्बैरेस कर सकते हैं. इट इज ऑल योर चॉइस. आप उसको एम्बैरेस कर रहे हैं, ओके फाइन, यू आर नॉट फॉर मी, स्टे, गो टू दैट वेटिंग रूम फॉर माय लाइफ. बहुत टाइम आएंगे. आप सिंपल चीज क्यों नहीं देखते? ऑल द यंगस्टर्स गो फॉर शॉपिंग, दे गो टू बाय मोबाइल फोन, दे गो टू बाय देयर क्लोथ्स, दे गो टू बाय शूज. वहां पर आप भी तो कितनी चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं. आई डोंट वांट दिस मॉडल, आई वांट अनदर मॉडल. दैट डजंट मीन कि वो जो दूसरा मॉडल का फोन है वो यूजलेस हो गया. वो किसी और को काम में आएगा, किसी और की फर्स्ट चॉइस होगी वो. सो एनीथिंग इन लाइफ. आज आपकी मदर 3 काइंड्स ऑफ ब्रेकफास्ट बनाती हैं, तो उसमें कोई एक जना, जो घर में इतने सारे लोग हैं, एक जना एक चीज को रिजेक्ट करता है, दूसरी चीज को अप्रिशिएट करता है. small things, just small things, bigger biggest results. Kindly please mute yourself, please check. You have to just help us maintain the silence on this group, and anybody is most welcome to unmute if they want to ask anything or want to share anything. But stay with us. This is not a small thing. जो चीजें दुनिया में सबसे महंगी हैं वो फ्री होती हैं. Let me tell you, अगर आज ये सेशन की कोई फीस नहीं है तो समझिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है. सांसें हैं, सबसे फ्री है. ओके, सनलाइट है, इट इज फ्री. ऑल दीज नेचर की दी हुई चीजें जो खरीद नहीं सकते. ब्लड है, ये आप खरीद नहीं सकते. जो there are some questions on the group. Yes. I feel are very relevant to what we are talking about here. Yes, please. So when we talk about ki, sometimes we end up getting into a pattern of overthinking. Obviously हम लोग कोई भी ऐसे पेनफुल थॉट्स में एंगेज नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक ओवरथिंकिंग के प्रोसेस में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. Yes. यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रूमिनेशन. रूमिनेशन इज अनदर टर्म फॉर ओवरथिंकिंग. ऑलराइट. अब ओवरथिंकिंग में क्या होता है, हम किसी सिचुएशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे होते हैं.
और वो ऑटो पायलट मोड पे होता है, राइट? ऑटो पायलट मोड एज इन ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी पिकअप करता है, क्योंकि फियर होता है उसमें इन्वॉल्व। बट रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिचुएशन को उस तरीके से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो सिचुएशन हो रही होती है, जब वो रिजेक्शन हो रहा होता है, जस्ट इमेजिन उस कमरे के अंदर एक एक मक्खी या एक बर्ड है, तो उस बर्ड को वो सिचुएशन कैसे दिख रही होगी? अब बर्ड का तो कोई बायस नहीं है टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स द अदर पर्सन। बर्ड को वो सिचुएशन, उस कैमरा को वो सिचुएशन कैसे दिख रही होगी? हम वैसे उस सिचुएशन को देखते हैं व्हेन वी आर रिफ्लेक्टिंग, कि उसमें क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था। अगर ये नहीं भी हुआ मेरे लिए, तो इन द लॉन्ग रन जब हम उसे जूम आउट करके देखते हैं अपनी लाइफ में, क्या इसमें कुछ अच्छा है? इज इट गिविंग मी समथिंग? इज देयर सम सिल्वर लाइनिंग इन्वॉल्व? और इज देयर समथिंग आई नीड टू डू बेटर, कि अगर अभी मैं सिलेक्ट हो भी जाती तो मे बी आई वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन माई ओन ग्रोथ इन सम वे. So maybe this is another chance for me to better myself and then try again to go to get what I really need, right? अब हम बात करते हैं about the feeling that it creates. Yes, of course वो हमारा confidence वगैरह को low कर देता है, and that's why we spoke about creating, you know, choosing our self-worth ourselves. अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जो अरुणिमा का जो वीडियो हमने देखा वो भी हमें सिखाती है, और जो जब वो उनसे बात करने गए कि मुझे आपकी हेल्प नहीं सिर्फ गाइडेंस चाहिए, वहां पे एक चीज बहुत जो जरूरी हम सीखते हैं वो ये कि इन हर माइंड द लाउडेस्ट वॉइस वाज हर ओन. यस. ओके, उसने दूसरों की बात नहीं सुनी, उसने ये नहीं सोचा कि किसने क्या बोला, कि अरे तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे या क्या नहीं. अब जब हम रूमिनेट करते हैं या जब हम ओवरथिंक करने लगते हैं, तो हमारी आवाज थोड़ी ऐसे फेड आउट हो जाती है. वो पिक्चरों में नहीं देखा कि एक एंजल होता है और एक डेविल होता है, एंजल विद विंग्स एंड डेविल विद रेड हॉर्न्स ऑन द हेड, और उस तरीके के थॉट्स होते हैं. तो जब हम ओवरथिंक करने लगते हैं तो हम वो डेविल या इविल जो रेड हॉर्न्स वाले जो क्रीचर होता है उसकी आवाज लाउड हो जाती है. हमें उस टाइम करना क्या है कि हमें उसको करना है म्यूट. जैसे हम अभी खुद को म्यूट कर रहे हैं ताकि हम जो चीज यहाँ सुनने आए हैं वो प्रॉपरली सुन पाए, वैसे हमें उस टाइम इविल या डेविल की वॉइस को करना है म्यूट. और जो हमारी एक्चुअल वॉइस है, राइट, जो शायद हमारी बेस्ट फ्रेंड या जो भी हमें कहते, उस वॉइस को ध्यान से सुनना है. दैट वॉइस हैज टू बी द लाउडेस्ट इन आवर माइंड. और बेस्ट फ्रेंड का नाम ले लो, हमारी खुद की वॉइस का नाम कह लो उसे. मैं in a more pragmatic way, I would like to call it the logical voice or the functional voice. Yes. All right. अभी जैसे अगर मुझे जाना है यहाँ से चंडीगढ़, और मैं यहाँ से बैठती हूँ फ्लाइट में, और फ्लाइट में बैठने से पहले मैं जाती हूँ काउंटर पे अपना बोर्डिंग पास लेने, और मैं उन्हें बोलती हूँ प्लीज गिव मी द आइल सीट. और वो बोलती है सॉरी मैम, ऑल आइल सीट्स आर गॉन, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव दैट टू यू. सो आई एम रिजेक्टेड ऑफ द रिक्वेस्ट दैट आई वांटेड ऑफ हैविंग एन आइल सीट. अब मैं क्या करूं? मैं बोलूं मुझे तो जाना ही नहीं ऐसे? नो, आई प्रॉब्ली से दैट यू नो just give me the window seat or give me the middle seat, whatever is available, right? Because I don't want that because of one small rejection my ultimate goal or target is unmet. बट अगर मैं वो कर लेती हूँ, सपोज आई हैव टू गो टू चंडीगढ़ टू मीट ऑल ऑफ यू, ऑलराइट, एंड मैं अपना सारा रास्ता ये सोच के निकाल देती हूँ, अरे यार मुझे तो आइल सीट मिली नहीं, अरे यार यू नो लाइफ इज सो अनफेयर टू मी, आई बुक सो मेनी डेज बैक बट इट डिडंट हैपन, दिस एंड दैट. नाउ आई हैव टू मीट यू आफ्टर 3 hours and I'm polluting my head space by engaging in something that is absolutely meaningless. Yes. Right? So I have to see, and we're all smart people here, okay? We're all smart people here. It's important कि मैं सोचूं कि अच्छा, if suppose I want to make पनीर का सब्जी, if I'll put paneer in the kadai only, then I'll get paneer ka sabzi, right? If I put karela in the kadai, I will get karela only, no? Yes. So what is it that I'm putting in my mind
and that's what it will yield. If I'm over engaging in my experience of rejection, again, I'm not saying कि उसको आप don't give it its due. You need to process it. There are times that there is rejection because it's trying to teach us something about something where we can improve. But it does break us. I'm not going to take it away from you. It does have the potential to break us if we allow it to. That's where we have to make a choice, that do I have to take the rejection as a feedback or as an experience in life, or do I have to take it as the ultimate truth or reality of my life, which is not true at all. Okay, so when I say about making that choice, Yeah. I feel this is something really nice. Okay, I call it a date with yourself. Okay, where D stands for something that I discovered about myself or my life today. It could be a positive, it could be a negative, but it's a discovery. All right. A stands for something that I achieved today. It could be achieving something over some emotion. या मेरे को normally situation में गुस्सा आ जाता है, but today I achieved that, I accomplished that. मुझे आज इस चीज पे गुस्सा नहीं आया. I managed to deal with it differently. T stands for something that I'm thankful for. Now again, rejection कभी कभी जरूरी भी होता है क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बनाता है कि हम उस डेंट को झेल पाए. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जिनको लाइफ में सक्सेस मिली जाती है, उनको हमेशा ही एक्सेप्टेंस मिलता रहता है, उनको आदत ही नहीं होती रिजेक्शन की. तो जब वो रिजेक्शन आता है लाइफ में, तब उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो होता ही नहीं लाइफ में, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई हैव नेवर सीन दिस. या एंड सो T stands for something that I'm thankful for, that thank you, this happened today. Even if it's a rejection, thank you that it taught me something. Thank you because it taught me to stay humble and grounded. कि मैं भी एक इंसान हूँ, I'm also a mango person, आम आदमी, कि मेरे साथ भी ये हो सकता है. And E stands for something that you can decide how you want to use the E. I use it in two ways. E stands for something that I experienced today in particular, or something that I expressed today. So you can express it in writing, or you can talk to somebody about it, you can tell somebody about it. Because कभी कभी जब हम अपने experiences को words देते हैं, तो वो experience हमारे लिए भी और ज़्यादा clearly दिखने लगता है. क्योंकि जब हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, तो वो ambiguous होता है और हम उसे feel ज़्यादा करते हैं, हम उसे clearly देख नहीं पाते. So I think expression of experiences is extremely important. So प्राची, तुमने अभी ये बोला कि sometimes it is important also rejection to help you in life. So I can relate this to है तो बड़ा weird, but I think it's very near to the life example. It is like कि कार में जैसे ब्रेक जरूरी है. I mean ब्रेक, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम सोचें कि ब्रेक जो है it is hampering my, you know, now my car is going to take more time to reach my destination. But whereas brake is helping me to reach to my destination life. Otherwise, I'm going to bang into something. Otherwise, I'm going to break the rules. Otherwise, I'm into danger. Without those brakes, I'm into danger. और वही ब्रेक्स को अगर मैं रिजेक्शन ले लूँ, माय गॉड, व्हाई इज दिस रेड लाइट, मैं 5 मिनट रेड लाइट पे अपना खून चलाती रहूं, अपसेट होती रहूं, और मे बी आई स्टार्ट कर्सिंग पीपल अराउंड कि people don't know how to drive or whatever. So I'm going to burn my energy only and going to get negative. So जैसे आप describe कर रहे हो, so this is very important. Brakes or even speed breakers. Speed breakers, yes. Can also be. We wrote in the post that rejection is the daily cuts and scrapes of life. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी स्किन पे कोई कट हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर कुछ फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं, राइट? क्योंकि फर्स्ट एड अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लीड करता रहेगा और वो हमें वीक फील कराएगा, राइट? यस, ऑफ कोर्स उस पर फर्स्ट एड लगाना जरूरी है कि हम उसको इमोशनली उस ब्लीडिंग को रोकें.
लेकिन I think the other flip side of it is that if we look at it as a speed breaker, जो हमें जैसे जब स्पीड ब्रेकर आता है तो हम गाड़ी की स्पीड स्लो कर देते हैं, तो आसपास जो भी होता है हम उसे और ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, बी इट ट्रीज, बी इट द ट्रैफिक, बी इट द पीपल, जो कि अदरवाइज हम नहीं देख पाते हैं। पिक्चरों में भी हमने देखा है कि हीरो को जब भी जो रियलाइजेशन होना होता है तभी होता है जब उसके साथ कुछ नेगेटिव होता है या कुछ पेनफुल होता है, राइट? सो समटाइम्स दैट इज essential. A little bit of pain is good for the soul. So, why not use that pain in a constructive way to learn something more about ourselves and desensitize ourselves कि यार, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि पेन होना ही नहीं चाहिए, रिजेक्शन होना ही नहीं चाहिए। इट एब्सोल्युटली मस्ट नॉट हैपन। वी डिमांड फ्रॉम लाइफ कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, कहाँ लिखा है ऐसा? शाहरुख खान भी रिजेक्ट हुआ था, अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हुआ था। हाँ, I'm just taking these names because they are known to everybody. But reject हर कोई होता है। प्राची, उस मामले में तो मैं बोलूंगी कि जैसे तुमने बोला पेन, आई वुड से कि या पेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर सपोज इफ आई एम डूइंग कुकिंग और आई एम नियर फायर, और वो क्योंकि मैं फायर के पास पहुंचती हूँ और एकदम से मेरी स्किन बर्न होती है और मुझे दर्द होता है, दैट पेन इज एक्चुअली सेविंग मी फ्रॉम गेटिंग बर्न पूरा। मतलब अगर मुझे वो पेन ना हो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं कब पूरी बर्न हो गई। दैट पेन टेल्स मी, इट इंटीमेट्स मी कि ओके फाइन, बी केयरफुल। सो ऐसे ही अगर हम कुछ कट कर रहे हैं और अगर हम नेल कटर से नेल्स भी कट कर रहे हैं और हमारी बाई चांस स्किन आ जाए ना, दैट इज पेनफुल। सो अगर वो पेन नहीं होगा, एंड रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो थॉमस एडिसन से बेटर तो कोई एग्जाम्पल, I mean, he got rejected in his जो उसने इन्वेंशन करी, जिस इन्वेंशन की वजह से आज तक दुनिया इज सो हैप्पी एंड इतने हमें कन्वीनियंस हुई है बिकॉज ऑफ हिज इन्वेंशन ऑफ बल्ब। उसके बाद ही सारी साइंस अलग डिफरेंट वे में इवॉल्व हुई है। सो ही वाज रिजेक्टेड 9,999 टाइम्स। बट अगर उनके मुंह से सुने, सो ही सेज, अगर एक प्रेस रिपोर्टर ने उनको बोल दिया कि आपको कैसा लगा, आई मीन आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आई, वो मोटिवेटेड यू कि आप इतनी बार फेलियर आपको देखना पड़ा, स्टिल यू हैड द स्टेमिना और द मोटिवेशन टू ट्राई अगेन फॉर दैट वेरी एक्सपेरिमेंट। सो ही सेड आई डोंट एक्सेप्ट योर लाइंस बिकॉज मैं नहीं मानता कि वो मेरे फेलियर्स थे। मैं ये मानता हूँ कि 9,999 बार आई वॉज learning different ways, the ways in which bulb cannot be made. So I was learning throughout. So अगर हमने इन rejections को अपना learning experience बना लिया कि oh my God, and we instead of why we convert it to wow, I've got another experience now. अब एक ये break और आई है, now I'm going to look at things more clearly because अब गाड़ी थोड़ी रुकी है, so let me see around, there are more options. और हमारी अपनी लाइफ, अभी जो टीनेजर्स हैं भी, इतनी लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने भी कर लिया कि जहां पर पहले भी इनके कई जगह स्टॉप आए होंगे, स्पीड ब्रेकर्स आए होंगे, उसके बाद बहुत कुछ नया इवॉल्व हुआ होगा डेफिनेटली। इफ आई वांट टू गो अपहिल, और मैं सोचूं कर्व्स तो आए ना, आई वांट टू स्ट्रेट ड्राइव अप टू द दिस रोड ऑफ शिमला एंड हैव टू रीच दैट हिल स्टेशन, सो इट्स नॉट पॉसिबल। कर्व्स भी आएंगे, कभी उतरना भी पड़ेगा, कभी चढ़ना भी पड़ेगा, कभी ब्रेक भी आएगी। आई मीन आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑल पार्ट एंड पार्सल। सो अगर हम इनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, मेन थिंग इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। सो अगर हम उसी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस मोड पे लिए आए, एंड देन वी फील दैट ओके वी आर गोइंग टू ड्रीम इट, वी आर गोइंग टू बिलीव इन इट आवरसेल्व्स। जैसे तो आपने बोला कि हमेशा को होता है कि वेदर वी आर थिंकिंग राइट और ग्रेट आस्था, very nice, thank you. I'm really sorry to interrupt you, but we have a lot of questions. Yes. So I have taken a screenshot for all the questions so that we can deal with them. Okay. So we'll try to arrange another session in few days so that we have to cover this topic in a good way. Yeah, because rejection is a very, मैं बोल ही रही थी प्राची को कि इसके लिए तो I think endless sessions भी कम ही रहेंगे, because this is one area, अगर हमने इसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली, victory is not about getting what we want in life. Let me tell you, it is never ever. Success and failure, they are two best of the friends. They are opposite of each other,
but they are best of the friends. एक के बिना दूसरा पूरा कभी भी नहीं होता. The moment we get success, we move forward. Again we step into something uncertain to achieve more. So फिर हम failure और success दोनों की तरफ दौड़ रहे होते हैं. उसमें से failure भी आ सकता है, success भी आ सकता है. But if we are fearful about failure, अभी आस्था is going to open questions. अगर हम fearful हैं, जैसे एक क्रिकेट प्लेयर तो खेल ही नहीं सकता क्योंकि उसे पता है शायद वो पहली बॉल पे भी आउट हो जाए. स्पोर्ट्स पर्सन, एंड आपको पता है कि जिस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तालियां बजती हैं उसकी एफिजीज भी जलाई जाती हैं स्टेडियम के ठीक बाहर जब वो बाहर निकलता है. ही इज क्रिटिसाइज्ड एंड इज जिन्होंने एक बारी भी बैट नहीं पकड़ा वो भी स्क्रीन पर बैठ के बोल रहे होते हैं इतने बेवकूफ है क्या, ऐसे शॉट मारना था. उस पर्सन ने कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी बॉल नहीं पकड़ी, कभी वो स्टेडियम के खेल, स्टिल ही हैज द राइट टू कमेंट एंड बड़ी बोल्डली क्या बेवकूफ वाला शॉट मारा तेंदुलकर ने. ही शुड हैव प्लेड लाइक दिस. And Tendulkar is a very live example. At the age of 23, becoming a captain of Indian team, a very big achievement. But going for some series और इंडिया के सारे मैचेस को हरा दिए being captain, और उसके बाद उसके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, फैमिली को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है because people are burning his effigies and you know वही एक जना जो एक मिनट में पिनाकल पे था फेम के. It was being said कि youngest star, youngest captain and he can do. बट क्या उसने अपनी रिजेक्शन को एम्बैरस नहीं कर दिया पूरी लाइफ में बाद में? He was rejected by the team, he was rejected by the public, he was rejected by his own self, his own family, everywhere. So this is a part and parcel of life, but we have to see कि हम रिजेक्शन को एम्ब्रेस कर सकते हैं. पहले एम्ब्रेस करना सीखें. एस प्राची बोल रही है कि हमने अपना अपना ये वे बनाया और उसके बाद हम उसको एम्बैरस कर दें. ओके फाइन, यू आर नॉट फॉर मी. जैसे कि अरुणिमा ने बोला कि आई क्लाइंब्ड नॉट विद माय लेग्स, इट वाज ओनली माय माइंड. तो माइंड को उसने सेट करा. और अगर आप लोगों ने अपने माइंड को नहीं जीता तो पूरी दुनिया में आप जीतते रहिए, स्टिल यू विल बी ऑलवेज fearful about your failure. And the moment you are fearful about your failure, nothing can give you happiness. Yes, Astha, questions. Sorry to interrupt, Bhabhi. It's already 1:45. So can we have a session on Monday, or we'll fix it out and then we can take only questions because there are like 10-15 questions. So अभी मुझे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि सब लोग गेम खेलने आए थे, पहुंचे ही थे अभी तो. we need multiple sessions. Okay. So definitely आप लोग अपने रिव्यूज दीजिए और जो आप लोग के क्वेश्चंस आए हैं प्राची, I will like try to answer in written also. हम लोग इसी ग्रुप पे आप लोग के लव यू जिंदगी के ग्रुप पे आप लोग स्टेट रहिएगा, कनेक्टेड रहिए, आस्क लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वी लव क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछना कभी भी गलत नहीं है. अपनी लाइफ में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है. बस अपने अंदर ही अंदर मत पूछिए, आस्क योरसेल्फ आल्सो. बट इतना हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हमें अगर कोई आंसर मिला है तो पहले जुझर जी, JUGHAR, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप म्यूट हो नहीं रहे हैं हमसे और बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. I would like, please, I would request last 2 minutes silence. Can you check us? It is Okay. done. Yeah. So No, it is, she's on. I have to remove her. please remove her. I think पता नहीं लगे. I think उन्होंने rejection को embarrass कर दी है, so she's very happy. So let's clap for her. All of you please clap. Okay? Accept yourself. दुनिया में कोई सुंदर और बढ़िया चीज है तो आप स्वयं हैं. You are the most uniquely designed gadget in this whole universe. आप जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं है. अपने फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में घूमकर मैच करने की कोशिश करिए. You are unique, but you have to accept your uniqueness. Just start loving yourself. Don't ask love from people. Don't ask success from things around you. Just believe that you are a success, an epitome of success in yourself. So rejection word ने हमें है खूब रुलाया, जीवन के अच्छे पलों को दूर भगाया. Rejection word ने हमें है खूब रुलाया, जीवन के अच्छे पलों को दूर भगाया. फेलियर और सक्सेस दोनों है जरूरी, फेलियर और सक्सेस दोनों है जरूरी.
स्माइल ने हम सबको देखो स्ट्रॉन्ग बनाया, अब हम करेंगे ना हम थकेंगे, अब आगे ही आगे हम बढ़ेंगे, अब हम करेंगे, अब हम बढ़ेंगे, आगे ही आगे हम सब बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस एक जीवन है। Somebody please mute yourself. It's okay. So smile, just smile. See magic in life every second. Smile, just smile. See magic in life every second. It's going to be a series of sessions. और आपको इसमें, as Prachi is giving you so much of knowledge, I bless her, I thank her a lot, being here with us on screen. छोटी छोटी चीजों को इतनी ब्यूटीफुली प्राची डिस्क्राइब कर रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ में एग्जाम होना तो हमें पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ खड़े रहते हैं, और जो भी प्रमोशन होती है हमारी वो एग्जाम के बाद ही होती है. तो I think we have to play this game. Guess who and guess what and guess which. So very nice. अब ये भी चीज देखिए कि हर जना यूनिक है. एक जना गाने सुनने में ही मस्त है, उसको पता ही नहीं है इतने लोग डिस्टर्ब हो. So let's clap for those persons. और स्माइल ने ये सिखा दिया कि अगर कुछ आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है ना, तो सबसे ज्यादा वही आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इन लाइफ. सो आज के सेशन को अगर हम कमेंट्स करें तो आई वुड लाइक टू से कि रिजेक्शन वर्ड के लिए आप थोड़ा सा ओपन हो जाइए कि ओके फाइन, वी आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट इट, वी आर गोइंग टू जस्ट सी इट नाउ. पहले हम इसको डिटेस्ट करते थे, हमें लगता था व्हाई मी. नाउ एटलीस्ट वी विल गिव सम टाइम, एंड जो प्राची ने आप लोगों को चीजें बताई हैं, ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड वील मीट सून. यस प्राची. Just wanted to add that I think people are very eager to have answers to their questions, and we would love to answer your questions. In the interest of time right now, and I think एक बहुत important aspect होता है rejection या rejection जैसे कोई भी experience से deal करने का, वो है patience. So let us practice beginning with practicing some patience, and we'll schedule a session sometime next week just to answer your questions and meet you there, and hope to see you there and listen to you and talk to you more efficiently. This is the first time that we are all connecting on this app. So let's explore this further and get familiar with this app and each other and connect again next week. Right, Marvel? Looking forward to see you there. Thank you. And बहुत सारे questions please करना, so Prachi will answer to all. And thank you Astha, thank you Sanjay, thanks to all of you for sparing time. But life is very precious, life is very beautiful. और Prachi ने तो patience की practice करने को बोला है, नहीं तो अगर हम patience नहीं practice करते तो कहीं ना कहीं patient में convert हो जाते हैं. जो youngsters बहुत हो रहे हैं, we should not do this to the society and to ourselves. We have no right to abuse our body by getting impatient. तो अपनी जो बॉडी है हमारी, ये हमारा सबसे बड़ी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल गैजेट है. लेट अस स्टार्ट लविंग इट एटलीस्ट. लेट अस ऑल से दैट वी लव आवरसेल्व्स. आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट यूनिकली डिजाइन्ड, एंड आई एम द मोस्ट परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल पर्सन. तब धीरे 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 हम पेशेंस को भी वर्क कर पाएंगे. थैंक यू, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू आस्था. Lovely. Thank you. Okay.